आइज़िया चैप्टर 1 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Isaiah's complaint of Judah, their universal corruption. He exhorts to repentance with promises and threatenings. The prophet bewails their wickedness. First verse से पढ़ेंगे। The vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people doth not consider. Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evil doers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. Why should ye be stricken any more? Ye will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Your country is desolate, your cities are burnt with fire. Your land strangers devour it in your presence, and it is desolate as overthrown by strangers. And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as a Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom. Give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. To what purpose is the multitude of your sacrifice unto me? Saith the Lord. I am full of the burnt offerings of rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he goats. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feasts my soul hateth. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil, learn to do well. Seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. How is the faithful city become an harlot? It was full of judgment, righteousness lodged in it, but now murderers.
Thy silver is become dross, thy wine mixed with water, thy princes are rebellious, and companions of thieves. Everyone loveth gifts and followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither doeth the cause of the widow come unto them. Therefore saith the Lord of hosts, the mighty one of Israel, Ah, I will ease of me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies, and I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy stain. And I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen. For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water. And the strong shall be as a tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them. Chapter 2. Isaiah prophesies of Christ's kingdom, wickedness, the cause of God's forsaking his people. The prophet forewarns them of the terrible day of the Lord. First verse पढ़ेंगे. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the Lord. Therefore thou hast forsaken thy people, the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures. Their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots. Their land also is full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself. Therefore forgive them not. Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty. The lofty looks of a man shall be humbled, and the haughtiness of a man shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Hallelujah. For the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up, and he shall be brought low, and upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,
and upon every high tower, and upon every fenced wall, and upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures. And the loftiness of a man shall be bowed down, and the haughtiness of a man shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day, and the idols he shall utterly abolish. Hallelujah. And they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. In that day a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats, to go into the clefts of the rocks and into the tops of the ragged rocks, for fear of the Lord and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Cease ye from man, whose breath is in his nostrils, for wherein is he to become accounted of? Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदा, महान बातें तूने लिखी है खुदा, हमारी समझ में आने के लिए पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर हमको पिता, वो अनुग्रह कर कि ये वचन बहुत बढ़िया तरह से हम समझ पाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हमें इन वचनों के अनुसार ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइज़िया यशायाह की भविष्यवाणी पहला अध्याय पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय पहले वचन से। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। परमेश्वर का अपने लोगों का फटकारना। दूसरे वचन से, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है।
और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुँह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। पतित नगरी 21 वचन से आगे, जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसी व्यभिचारिण हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हकीम हटीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला न होगा। हालेलुया। अनंत काल की शांति 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे।
आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। घमंड नष्ट किया जाएगा। वचन से आगे, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपने उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तरशीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगिदड़ों के आगे फेंकेंगे। हालेलुया। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों के दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसके श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, कितना महान है तू, हमारा हौसला बढ़ाने वाला परमेश्वर। हर समय असमय खुदा परमेश्वर, तेरा सच्चाई जब हमारे अंदर आता है, हमारा प्राण आनंदित हो उठता है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू आबा, आई लव यू आबा, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। धन्यवाद इन वचनों को तूने हमारे अंदर लाया और आज का समय तूने पूरा करके दिया। एंड आई थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना और धन्यवाद बलिदान मांगते हैं कि हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के व्यवस्थितपन में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान।
ल्यूक 23 चैप्टर 34 वर्स से 43 वर्स तक, 2 सैमुअल 11 चैप्टर 12 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 से 43 वचन। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 12 अध्याय। जब हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे तो हम अपने अकेले में, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। और जब हम इसे पढ़ रहे होंगे तो हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, सच्चाई के भेद, रहस्य हमको जब देगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी माय फ्रेंड्स, आसान हो जाएगी। ओके, हम आज जो भी कुछ है इसका कारण इतना ही है कि हमारे पास परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस नहीं होता है और इसके लिए हम ऐसे समयों से होकर जा रहे होते हैं। ओके, जैसे ही परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस हमको मिल जाता है, हमारी परिस्थितियां बदल जाती है, हमारा समय बदल जाता है। तो ये सब कुछ अकेले में बैठकर जब आप अनुग्रह के आत्मा से सीखेंगे परमेश्वर का वचन, तो ही संभव होने वाला है, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। इसके लिए अगर आपके अंदर अभी भी अभिलाषा नहीं है पवित्र वचन को अभ्यास करने का, तो आज इस समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरे और आप वो अनुग्रह को आज प्राप्त करें और आप शुरू करें ये बाइबल रीडिंग पर्सनल टाइम में। और निश्चित देखिए 2 साल के अंत में आप देखेंगे आप इतने बदले हुए इंसान रहेंगे और इतना ताया हुआ, सुलाखा हुआ, विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे कि आपको परमेश्वर अपने उपयोग का बर्तन बनाकर उपयोग लेना शुरू करेगा और आपके रिवॉर्ड्स बनते जाएंगे, ब्लेसिंग्स बढ़ते जाएगी। और ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा मिला है और हम उस अनुग्रह के आत्मा का, सच्चाई के आत्मा का, पवित्र आत्मा का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल के पढ़ने में। खुदा, जो वचन हमारे जहन में होना है, रखना है और अच्छे तरह से पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के व्यवस्था के नीचे आकर, तेरे अधीन होकर, आज्ञा पालन में होकर पिता परमेश्वर ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करने की हम तुझसे विनती करते हैं। हमें व्यवस्थित करने की हम तुझसे विनती करते हैं। तेरे डेस्टिनी में पहुंचने के लिए, तेरे ऑर्डरलीनेस में हमें फिट एंड फिक्स करने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।